Shashank Shekhar Singh from Target Academy, and in this lecture we will be solving some numericals on Rankine cycle, and this lecture is the first set of numericals on Rankine cycle. In the second set of numericals we will be solving some more things that after we have studied some more concepts on Rankine. Alright, so in this part, whatever the concepts we have discussed so far, in this case, in this numericals we will be talking about them, and these numericals will definitely help you to attain the most concrete concept. All right, so that will help you. In that case, try to understand it, very focus on the numericals, try to understand, and things will be very easy for you. None of the question from the GATE examination will be left out. All right, you will be able to solve all the numericals from the GATE questions. All right, even all the competitive examinations. Now let's start. In this case, it says the numerical one, a Rankine cycle operates between pressure of 80 bar and 0.1 bar. The two pressure have been given to you, higher and lower, which is boiler and condenser pressure. The maximum cycle temperature is given to you as 600 degrees Celsius. If the steam turbine and pump efficiencies are 0.9 and 0.8, this thing is important to understand, which I have not told yet because I was waiting for the numerical to be discussed, in which I would have cleared these things for you. Alright, so they have mentioned that the steam turbine and pump efficiencies are 0.9 and 0.8 respectively. Calculate net work net, that is specific work, and the thermal efficiency, that is the Rankine thermal efficiency. Alright, so this is the data given for you in the form of a steam table. Whatever the things that we are concerned about, 0 examination, went to you in the examination, went to you in the examination, went to you in the examination, nothing else. So in this case, these two pressure limits have been given to you. Alright, and 80 bar and 600 degrees Celsius. Now see, the most important part here, they are saying, one of the most important part actually, T max 600 degrees Celsius. Now T max, where this T max will exist? T maximum temperature will be there in the cycle only if after the heat addition is done or complete. So heat addition will be done in the boiler, and after it has, the steam exits from the boiler, it will have the maximum temperature. It means after boiler or entry to the turbine. Definitely, so state 1, this is the initial state. So initial state is nothing but 80 bar and 600 degrees Celsius. The initial state, the temperature of the steam at this state is greater than the saturation temperature at 80 bar or not. At 80 bar, saturation temperature is given to you as 295.1. But here it is 600 degrees Celsius. Definitely it is a superheated steam. That's why they have mentioned you this part, that 80 bar and 600 degrees Celsius में superheat table आपको दिया हुआ है, so that you have to use this data for the initial state of the steam. I hope this is clear. ठीक है? Any doubt in this? So now, before we move into the main solving the question, solving the numerical, we have to understand what is asentropic efficiency and what is pump efficiency. Alright, these things are important. Alright, so let us draw TS diagram. I will explain with the help of HS diagram also, and on HS diagram it will become very clear to you. So first of all, we will draw the basic diagram, that is TS diagram, for whatever the things we have learned till now. So from 1 to 2, since one is on 80 bar and 600 degrees Celsius, we have fixed the state 1. Now from state 1 to state 2, there will be expansion. This state 2, whether it will be on wet region or on superheated or saturated point, we will see that. As of now, just think it is in the wet region. Alright, just assume that. Now from 1 to 2, the expansion is done like what? Asentropically. 1 to 2, that is S1 equal to S2 होना चाहिए. लेकिन आपका efficiency दिया हुआ है 0.9 and 0.8 दिया हुआ है ना? It means that somewhere the actual amount of work done is less or more. ठीक है, मैं बताऊंगा more क्यों बोला मैंने, why I have said more in this case. I will say for turbine somewhere that something is getting lost, that is 10% is getting lost. That's why we are not getting the ideal net work output, ideal work output from the turbine. We are getting only 90% of it. Why it is happening? Because the entropy is increasing. There is an entropy generation in this case, in both the cases of pump and turbine. So it means like asentropically nahi hoke, it will deviate from asentropic process and it will be something like this. The point 2, instead of 2, it will have 2 dash. So 1 to 2 is ideal expansion, but 1 to 2 dash is actual expansion. Alright, similarly we have 3 to 4 as ideal.
3 to 4 is what? Ideal. And 3 to 4 dash is nothing but it is actual pump. Understood? ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने से ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको दिक्कत होगा समझने में थोड़ा सा. सो वी शैल डिस्कस दिस थिंग ऑन एचएस डायग्राम. एचएस डायग्राम विल मेक दिस थिंग्स वेरी वेरी क्लियर टू यू. On HS diagram we have this part as the liquid, saturated liquid line, and then we have saturated vapor line. Alright, and in this case our pressure is denoted something like this. This is higher pressure and we have lower pressure. ठीक है, ये प्रेशर लाइन थोड़ा सा you know we have this. ठीक है, so in this case just see, for take this part, this is our point 1 and ideally it would have expanded something like this, है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है, ये ऐसे चला जा रहा है. so 1 से 2 HS, it is S, so it would have been S1 equal to S2, but no, it is not taking place like this, it is deviating to 2 dash. ठीक है, तो हम लोग जब पंप एफिशिएंसीज और एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन लिखते हैं ना, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, corresponding to 1 we have what? H1, and corresponding to 2 we have H2. Alright, but corresponding to 2 dash you see we have H2 dash, है ना, this is H2 dash, this is H2 and this is H1. आप यहाँ पे देखो एक्चुअली हम लोग को कितना मिल रहा है, दिस पार्ट इज आवर एक्चुअल और नॉट, बट H1 minus H2 would have been what? It is ideal. H1 minus H2 dash is actual and H1 minus H2 dash is actual, H1 minus H2 is ideal. You see, हम लोग को आइडियल वर्क आउटपुट कितना मिलता है? H1 minus H2. लेकिन एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, अगर ये ऐसे जाएगा तो एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखो ये कम हो जाएगा, H1 minus H2 dash हो जा रहा है. सो दिस इज H1 minus H2 dash, यहाँ आपको मिल जा रहा है आइडियल. ठीक है, सो यहाँ पे जब टरबाइन एफिशिएंसी लिखोगे ना, टरबाइन एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? यू हैव टू डू समथिंग बाय एक्चुअल बाय आइडियल, है ना. सो एक्चुअल की जगह आप लोग लिखोगे क्या? H1 minus H2 dash and ideal would have been what? H1 minus H2, and this is turbine efficiency. This thing is very very important for you guys. Alright, मैं ये चीज मेंशन करूंगा वापस से ताकि आपको समझ में आ जाए. Alright, similarly now in this case you see we have pump. The pumping is done from this point to this point, कर रहे हैं? This is what? 3 to 4, है ना. लेकिन पंप में क्या हो जा रहा है कि देयर इज एंट्रोपी जनरेशन, तो ये ऐसे चला जाएगा 4 डैश. नाउ सी, पंप क्या है? पंप इज कंज्यूमिंग वर्क, दिस पंप इज कंज्यूमिंग वर्क. क्लियर? आपको थोड़ा सा यहां समझा देता हूं मैं. पंप क्या करता है? इट कंज्यूम्स वर्क, और वर्क कंज्यूम कितना कर रहा है? ये वर्क ऑफ पंप इतना कर रहा है. क्लियर है? सो पंप कंज्यूम करेगा, तो जो भी चीज अगर कंज्यूम कर रहा है, समथिंग दैट इज कंज्यूमिंग एनर्जी, वी वुड वांट दैट इट शुड कंज्यूम लेस एनर्जी. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगेगा. सो वेर एवर देर इज अ पंप वर्क सप्लाई टू द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जहां भी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वहां पे क्या होगा कि ड्यू टू एंट्रोपी जनरेशन वर्क ऑफ एक्चुअल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वर्क ऑफ आइडियल. ये हमेशा देख लो. दिस इज व्हाट, दिस पार्ट 3 to 4, यू सी 3 to 4, ये एक्चुअल, ये आइडियल पंप वर्क है कि नहीं? दिस इज वर्क आइडियल और नॉट? ऑलराइट, लेकिन 4 dash to 3 it is actual हो रहा है. क्लियर है? सो इन दिस केस सी,
H4 dash, this is H4 dash or not? This is H4 dash, this is H3. So H4 dash minus H3 is greater than H4 minus H3 or not? You can see here H4 dash minus H3 is greater than what? H4 minus H3 or not? तो यहाँ पे मिल रहा है ना, दिस इज एक्चुअल ना, एक्चुअल की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन हो जा रहा है. क्लियर. नाउ इन दिस केस वी विल राइट डाउन पंप एफिशिएंसी एज, we will write down the pump efficiency as, now in this case whenever there is a work done on the system we will have work ideal by work actual. So we will have H4 minus H3 divided by H4 dash minus H3. तभी तो पंप ये ज्यादा एक्चुअल नीचे ज्यादा हो जाएगा, तभी तो पंप वर्क जो है वो लेस देन 1 आएगा, विच इज कमिंग आउट टू बी 0.8 इन दिस न्यूमेरिकल. ऑलराइट. So this thing you have to remember, this part is very very important which you have to keep in your mind. इसमें ये नहीं होना चाहिए, you do not have to miss out on this, okay? कभी भी नहीं, गलती नहीं करना है, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी होता है, विच आई थिंक लाइक कॉलेजेस में नहीं समझाए जाते हैं, बट स्टिल लेट्स मूव ऑन. नाउ सी, मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल एंड लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. नाउ सी स्टेट 1 के बारे में हम लोग बात कर ले. लाइक लेट्स टॉक अबाउट स्टेट 1. State 1, that is the state of the steam at the entry to the turbine. तो यहाँ पे हम लोग को 80 बार एन इनिशियल स्टेट ये मिल रहा है हम लोग को 80 बार एन 600 डिग्री सेल्सियस. तो हम लोग के पास यहाँ पे 80 बार और 600 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग को H, V और S तीनों का वैल्यू दिया हुआ है. सो डेफिनेटली वी कैन हैव H1. सिंपल सा बात है यहाँ पे 3642 किलो जूल पर केजी. And we have S1 is equal to 7.0206 kilojoule per kg Kelvin. I hope you are getting this point. Understood? H मिल गया, S मिल गया, क्लियर है. तो अब हम लोग को देखना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है पहला बात तो we have to find out नेट वर्क, हम लोग को वर्क नेट निकालना है, and we have to find out work what, yeah sorry, we have to find out thermal efficiency, right? So in this case this thing will be determined. All right, so for thermal efficiency हम लोग को क्या चाहिए, we need work net by Q supply, heat supplied, ठीक है. तो यहाँ पे देखो तो heat supplied कहाँ होगा, यहाँ होगा, this is QS, clear. Now 4 dash actual part, actually जब भी efficiency के बारे में बात करेंगे then the Rankine cycle will be modified something like this. It will go like 1 to 2 dash, then 3 to 4 dash, then 1, क्योंकि efficiencies दिया हुआ है. Pump ideal नहीं है, turbine ideal नहीं है. This is the most important thing that you have to keep in mind. Now whenever we will talk about heat supply now, QS, it will be equal to H1 minus H4 dash होगा, H4 नहीं होगा. It will be H1 minus H4 dash because efficiencies of pump is given to you. Alright. In this case work turbine will be H1 minus H2 dash. ये हम लोग बात करेंगे. Let's move on. धीरे धीरे slowly move करते हैं. S1 दिया हुआ है आपको. Now we know 1 to 2 process 1 to 2 जो होगा, ठीक है, process 1 to 2 जो होगा, that is what, isentropic expansion. Isentropic expansion in steam turbine, ये आपको ध्यान देना जरूरी है. It means it says S1 must be equal to what, S2, definitely. तो S1 अगर वैल्यू 7.0206 दिया हुआ तो डेफिनेटली S2 is equal to what, 7.0206 किलो जूल पर kg Kelvin. Getting my point? Now in this case you see S2 का वैल्यू 0.2 is lying on which pressure? It is lying on 0.1 बार. तो हम लोग 0.1 बार पे जाएंगे. 0.1 बार पे हम लोग Sg का वैल्यू देखेंगे. वी विल सी द एंट्रोपी ऑफ द वेपर, सैचुरेटेड वेपर. तो एंट्रोपी का कितना है, 8.1494. नाउ इन दिस केस H2 का वैल्यू देखो तो S2 का वैल्यू हम लोग को 7.0206 मिला, और corresponding to that pressure that is 0.1 bar we have Sg value is equal to what, 8.1494. so definitely S2 is less than Sg which is equal to 8.1494 किलोजूल पर केजी केल्विन. तो हम लोग को मिल जाएगा ना, हम लोग को ये क्या मिला, 0.2 is in which state, 0.2 it is lying on in wet region. मिल गया, क्लियर है. नाउ वी कैन हैव S2. S2 का वैल्यू हम लोग को पता है, लेकिन S2 अगर वेट रीजन में है
this is the weight region. Can we write down like this, SF plus X SFG? But S2 value we have already have 7.0206, and SF value, now see, SF value is 0.6488, corresponding to which pressure देख रहे हैं, क्योंकि 0.2 is lying on 0.1 bar, so corresponding to 0.1 bar we are having SF as 0.6488 plus X, and SFG का value देखो, you do not have to do SG minus SF, they have given to you as 7.5006, so X into what, SFG के लगा 7.5006 आप लिख सकते हो. In this case you will get the value as, X का value निकाल लोगे. So let me calculate 7, you do what, 7.0206 minus 6.6488 कर दो, 7.0206 minus 6.6488 divided by, you'll get 7.5006. So you are getting 0.849, so it will be corrected to 2 decimal places. You will have the dryness fraction at 0.2 as 0.85. Clear? Any doubt in this? ठीक है, आप H2 का वैल्यू निकाल सकते हो ना. ठीक है, अब आपको H2 का वैल्यू निकालना क्यों है, क्योंकि आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वर्क टर्बाइन एक्चुअल निकालना है कि नहीं निकालना है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वर्क टर्बाइन एक्चुअल, क्योंकि एफिशिएंसी दिया हुआ है, so definitely you will find out from turbine efficiency is that work actual by work ideal, and work ideal is nothing but what, क्या है, H1 minus H2 है कि नहीं है. Here you see work ideal is what, H1 minus H2. H2 पहले निकालना जरूरी है, तभी जाके H2 डैश या वर्क एक्चुअल निकलेगा. So definitely we can have H2 as equal to HF plus XFG, क्योंकि हम लोगों ने x निकाल लिया पहले, और विदाउट x we would not have been able to find out the value of H2. So for H2 that is on 0.1 bar, let's move on to the enthalpy part. Enthalpy part we have 191.9 and HFG we have 2392.3. ठीक है, so 191.9, so we have HF as 191.9 plus x का value 0.85 and HFG was given as 2392.3. Let's cross check again. HFG कितना है, 2392.3. Yes, HFG is 2392.3. Clear? So in this case we will have 0.85 into 2392.3 plus 191.9. Any doubt in this? So we are getting 2225.35 kilojoule per kg. I hope this is clear to you. ठीक है, H2 का वैल्यू मिल गया आपके पास. नाउ H2 मिल चुका है, तो यू कैन हैव वर्क आइडियल और नॉट. ठीक है, वर्क आइडियल ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज टर्बाइन के लिए बात कर रहे हैं. सो विल हैव H1 माइनस H2, एंड H1 का वैल्यू आपको दिया ही हुआ था, दैट वाज गिवन टू यू एज 3642. यहाँ पे देख लो, सुपर हीटेड जोन में दिया हुआ है. H1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3642. ऑलराइट, सो वी कैन हैव H1 एज 3642 minus 222.5.35. So we have 3642, we have 1416.645 किलोजूल पर केजी. ठीक है, ये आपको मिल गया. 65 भी ले सकते हो उसको आराम से. राइट, सो वर्क टर्बाइन मिल गया यहाँ पे, दैट इज आइडियल केस. नाउ वी हैव व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन यहाँ पे दिया हुआ है. Efficiency of turbine is given to us 0.9. Work actual we do not know, we have to find out. And then we have work ideal. Work ideal हम लोग को निकल चुका है 1416. So you can have work actual as, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. So it's 0.9 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 1416 से, ठीक है, so we will get 1274.98 1274.98 किलोजूल पर केजी. Now see, this work actual is less than work ideal or not. Clear? So हम लोग को ये दो पॉइंट मिल गया, which is very important. work actual मिल चुका है. Alright, and then we had work ideal too. ठीक है, so work actual और work ideal मिल चुका है हम लोग को. ठीक है, ये हम लोग को मिल गया. Now what happens now? Let's see.
एक्चुअल निकालना इसलिए जरूरी था बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट थर्मल एफिशिएंसी। ऑलराइट, तो दिस वर्क एक्चुअल इज नथिंग बट वर्क टर्बाइन जो हम लोग को एक्चुअली में मिल रहा है, दैट इज वर्क टर्बाइन एक्चुअल पार्ट। हम लोग इसी को यूज करेंगे बिकॉज एफिशिएंसी दिया हुआ, टर्बाइन की एफिशिएंसी कम है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट वेयर 3 to 4। ठीक है, तो H3 स्टेट 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, so state 3 will be something like what, let's see। so state 3 के बारे में बात किया जाए, so state 3 is lying on the saturated liquid line on which pressure 0.1 bar मिल रहा है ना। देखो 3 is lying on 0.1 bar and this is saturated liquid, so we will have H3 as 0.1 bar पे क्या देखेंगे, HF का वैल्यू देखेंगे, we'll see this। तो HF का वैल्यू कितना हो गया 191.9, H3 इज इक्वल टू 191.9 किलो जूल पर केजी। एनी डाउट इन दिस? नहीं। नाउ हम लोग को अभी देखो, हम लोग को निकालना है, यहां से भी बात कर सकते हो, HS से भी बात कर सकते हो, दैट वी हैव टू फाइंड आउट QS ऑल्सो एंड वी हैव टू फाइंड आउट वर्क पंप एक्चुअल ऑल्सो। तो हम लोग को यहाँ पे डिटरमाइन करना है वर्क पंप एक्चुअल। ठीक है, सो वर्क पंप आइडियल पहले निकाल लें, तभी तो हम लोग एफिशिएंसी ऑफ पंप यूज करेंगे। तो पंप यूज करेंगे तो हम लोग वर्क आइडियल बाय वर्क एक्चुअल हो जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा बिकॉज दिस इज कंज्यूमिंग वर्क। आइडियली हम लोग चाहेंगे कि वी वांट दैट इट शुड कंज्यूम लेस वर्क, बट एक्चुअली इट इज कंज्यूमिंग मोर वर्क। दिस इज द वे यू कैन इंटरप्रेट अबाउट द एफिशिएंसी। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वर्क पंप के बारे में। तो पंप वर्क निकालने के लिए पहला बात तो हम लोग पंप वर्क के बारे में निकालने के लिए ऐसे सोचा जाता है, वर्क आइडियल इज इक्वल टू H4 माइनस H3, यही है ना। H4 minus H3 will give you the work pump ideal, this is isentropic part, and in this case we will have H4 dash minus H3 as the actual work, so pump work actual is equal to H4 dash minus H3, and work ideal in case of pump, for pump के बारे में बात कर रहे हैं, we have H4 minus H3, है ना। तो हमारे पास H4 भी नहीं है, हमारे पास H4 डैश भी नहीं है, खाली ये दिया हुआ है और H3 मालूम है हम लोग को, H3 दिया हुआ है 191.9। तो H4 निकालने का तरीका आसान है, कैसे करेंगे, पहले तो पंप वर्क निकाल लो कितना होगा एक्चुअल में। सो वी हैव, होता है ना डेल WP इज इक्वल टू माइनस VDP एंड ऑल, तो माइनस साइन तो डिनोट करता है कि इट इज कंज्यूमिंग वर्क। ऑलराइट, सो वी कैन राइट डाउन पंप वर्क इज इक्वल टू, किसको पंप करेगा, पानी को, VF यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड को करेगा, बिटवीन विच प्रेशर्स, बिटवीन 80, चेंज इन प्रेशर विल बी 80 एंड 0.1। क्लियर है, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर। माइनस साइन मैं यहां नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आई वांट टू राइट डाउन ओनली द मैग्नीट्यूड। क्लियर है, सो VF, ये जो VF है ये कहां जरूरत है, कहां से लेंगे, दिस VF विल बी टेकन बिकॉज पंप कहां से शुरू हो रहा है, पंपिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 3 इज लाइंग ऑन 0.1 बार एंड दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। तो पॉइंट नंबर 3 का VF देख लेंगे क्या है, दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड 0.0010103, दिस इज द VF एट 0.1 बार। क्लियर, तो ये ओपन फ्लो है, ओपन सिस्टम है, इसलिए वी हैव दिस है 0.0010103 इंटू 80 माइनस 0.1 is 79.9, ये बार है इसलिए वी विल बी हैविंग 10 to the power 5 पास्कल। लेकिन सिंस वी हैव टू टॉक अबाउट लाइक किलो जूल ये सब में निकालना है हम लोग को, तो दिस इज व्हाट 1000 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज गॉन, वी विल गेट दिस वैल्यू एज, ध्यान देना, वी विल गेट दिस वैल्यू एज 79.9 इंटू 10 to the power 2 हो जाएगा, दैट इज 100 इंटू 0.0010103, वी आर हेडिंग 8.072 8.072 हम लोग को मिल गया यहाँ पे भाई। ठीक है, दैट इज किलो जूल पर केजी, दिस इज द वर्क पंप आइडियल। पंप आइडियल वर्क मिल गया हम लोग को यहाँ से, एनी डाउट इन दिस। लेकिन हम लोग को एफिशिएंसी ऑफ पंप दिया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये आइडियल है वर्क आइडियल, हम लोग को क्या चाहिए, वर्क एक्चुअल चाहिए। सो वर्क पंप अगर एक्चुअल देखते हैं तो पंप का वर्क जो है वो उधर जाएगा एक्चुअल और ये नीचे आ जाएगा। सो वी विल हैव 8.H4, दिस इज व्हाट वर्क पंप आइडियल इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू H4 माइनस H3।
So you can have ideal work as 8.072 divided by 0.8. आपको पंप एफिशिएंसी दिया हुआ था. This pump efficiency was given to you as 0.8. So we will have divided by 0.8. We have 10.09 as the actual 10.09 किलोजूल पर केजी as the actual pump work. ठीक है. और ये एक्चुअल पंप वर्क कितना होता है? H4 डैश माइनस H3 होता है ना. तो यहां से हम लोग H4 डैश निकालना क्यों जरूरी है? देख लो, H4 डैश निकालना इसलिए जरूरी है. यहाँ पे हम लोगों ने H2 डैश नहीं निकाला, इसको हम लोगों ने नहीं निकाला. ठीक है. वी डू नॉट वांट दिस. हम लोग को सिर्फ वर्क टर्बाइन एक्चुअल मिलने से ही हो गया. वी आर हैप्पी विद दैट. नाउ इन केस ऑफ पंप वी हैव टू फाइंड आउट 4 डैश, बिकॉज अगर हम लोग क्यू सप्लाई के बारे में ध्यान दें, इफ यू हैव टू सी द क्यू सप्लाई, हीट सप्लाइड, देन H1 माइनस H4 डैश करेंगे ना, बिकॉज एक्चुअल साइकिल तो ऐसे जा रहा है फ्रॉम 1 to 2 डैश, 2 डैश to 3, 3 to 4 डैश. दिस इज द एक्चुअल साइकिल. ये तो आइडियल है जो हो नहीं रहा है. सो 4 डैश वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी एट 4 डैश, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द हीट सप्लाई. सो हीट सप्लाई कितना हो जाएगा? दिस इज 10.09 and H4 dash we do not know, but H3 we know because H3 is the value of HF at 0.1 bar. So we will get 201.99 kilojoule per kg as equal to H4 dash. मिल गया. तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? QS निकाल सकते हैं. Heat supply is H1 minus H4 dash. H3 Q1 H1 that is the point, this is superheated steam 3642 आपको दिया हुआ है superheated टेबल में, minus H4 dash is 201.99. So we can find out 3642 minus 201.99. अगर निकालते हैं we will get the value as 3440.09. 3440.09 kilojoule per kg. And we can find out work net. We will get work turbine actual minus work pump actual. So work turbine actual कितना है? वर्क टर्बाइन एक्चुअल हम लोगों ने आइडियल तो इतना निकाला था, बट एक्चुअल हम लोग को 1274.98 मिल रहा है. दिस इज डन. तो 1247 है या 74? 1274.98 1274.98. और एक्चुअल वर्क ऑफ पंप वी आर गेटिंग 10.09. सो वी आर गेटिंग 1274.98 minus 10.09. The value we are getting 1264.89. ना हम लोगों ने ये निकाल लिया जो हम लोग को जरूरत था. ये हम लोग को पूछा गया था वर्क नेट, है ना. दिस वाज आस्क्ड टू अस. एंड इन दिस केस another thing that we have to determine, we have to determine the thermal efficiency of Rankine cycle. So it is work net output by input is QS. So net is 1264.89 divided by QS is 3440.09. In this case we are getting divided by 3440.09, we are getting 36.76% आंसर. देखा, लंबा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. दिस इज नॉट फ्रॉम गेट, बट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग हाउ टू यूज इट, आई हैव डन दिस पार्ट फॉर यू. ऑलराइट, so hope you understand this part and it was easy for you to understand completely. Let's move on to the next part, next numerical. Now from this point onwards we will have the numericals from the grade previous year. So this is question number 2. It means, see, the fundamental objective of employing the condenser in a steam power plant is to reduce or increase the dryness fraction of steam. तो कंडेंसर का काम क्या होता है? व्हेन वी राइट डाउन कंडेंसर, कंडेंसर विल कंडेंस द स्टीम. कंडेंस करेगा ना, कंडेंस द स्टीम. सो कंडेंस करने पे क्या हो रहा है कि वो स्टीम जो है वो क्या धीरे धीरे क्या बन रहा है? लिक्विड में बन रहा है. लिक्विड में बन रहा है. तो स्टीम का, सैचुरेटेड स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा 1 और सैचुरेटेड लिक्विड का ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा 0. सो 1 से 0 जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आंसर इज रिड्यूस. गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको ये सब चीज में कोई दिक्कत हो
तो आप टीएस डायग्राम आराम से बना लेना, आपको वहीं पे अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस फ्यू थिंग्स definitely is a smart thing to understand, or it is a basic thing to understand completely. All right, now see in 89 this question appeared for 2 marks. I hope like 2 marks का तो ये क्वेश्चन है नहीं वैसे, ठीक है। Anyways, let's move on to the next lecture, next question, that is question number 3. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और ये क्वेश्चन पावर प्लांट में दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इसमें भी मिल सकता है, लाइक ये एंट्रोपी का भी पार्ट बन सकता है। लेट्स सी, एयर एक्सपांड्स स्टेडीली थ्रू अ टरबाइन फ्रॉम 6 बार, देखो आपको दिया हुआ है फ्रॉम 6 बार से कहाँ जा रहा है वो, 6 बार 800 केल्विन, ये इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, टू 1 बार एंड 520 केल्विन, सो इनिशियल एंड फाइनल दोनों दिया हुआ है आपको। During the expansion, heat transfer from the air to the surrounding is 10 kilojoule per air. Neglect the changes in kinetic and potential energies and evaluate the irreversibility per kg of air. Neglect the changes in kinetic and potential energy and evaluate the irreversibility. Evaluate the irreversibility per kg of air. Assume air to behave as an ideal gas and Cp and R value are given to you. तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट, आप जैसे भी इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बात करते हो, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, टी नॉट एस इंटू एस जनरेशन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एस जनरेशन फर्स्ट। एस जनरेशन निकालने के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एयर प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स निकालना पड़ेगा, वेयर एयर इज द सिस्टम, ये हम लोग का सिस्टम है कि नहीं है। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, दैट इज एयर के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं सी पी एल एन, बिकॉज इट इज अ कंप्रेसिबल गैस है ये, माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन। आर का वैल्यू, जो वैल्यू दिया है आपको वो यूज करना है, डू नॉट बी ओवर स्मार्ट एंड डू नॉट यूज 0.287 इन दिस केस, और सी पी एस 1.005, आपको जो वैल्यू दिया है वो इस्तेमाल करना है। तो सी पी का वैल्यू 1, एल एन का वैल्यू, एल एन टी टू इज वॉट 520 केल्विन एंड टी वन इज 800 केल्विन, सो वी कैन राइट डाउन 520 बाई 800 माइनस आर का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है, एंड द प्रेशर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 बार टू 1 बार, so P2 is 1 bar and P1 is 6 bar. In this case, if you do the calculation, ln of 520 divided by 800 minus 0.3, do not take 0.287, 0.3 जो दिया हुआ वही लेना है, into ln 1 divided by 6. So in this case, I am getting the positive value, यानी कि 0.1067. We are getting kilojoule per kg Kelvin. ठीक है, मास तो दिया नहीं हुआ आपको। उसी तरीके से सराउंडिंग्स के बारे में बात करते हैं। सराउंडिंग्स में एक्सपेंशन होते समय एयर ने क्या कर दिया, सराउंडिंग्स को कितना हीट ट्रांसफर कर दिया। हीट ट्रांसफर फ्रॉम एयर, देखो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एयर to surroundings, it means heat is being transferred from air to the surroundings where surrounding is accepting heat, but the temperature is constant out there, so heat accept करेगा Q by T के फॉर्म में। तो heat accept कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, that is 10 किलोजूल पर kg of air ले रहा है, which temperature, like 300 Kelvin पे ले रहा है। so 1 divided by 30, so we have 10 divided by 300 मान दिया हुआ, जो उसके हिसाब से करते हैं, we will have 0.033 किलोजूल पर केजी। ठीक है, तो हम लोग के पास एंट्रोपी जनरेशन हो जाएगा, सॉरी एंट्रोपी जनरेशन में डेल्टा नहीं लिखते हैं, वी ओनली राइट डाउन एंट्रोपी जनरेशन एज दिस प्लस दिस हो जाएगा, है ना, चेंज इन सिस्टम लाइक एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स एंड सिस्टम प्लस 0.033. ऑलराइट, सो वी हैव द टोटल वैल्यू एज 0.140 ऐसे आ रहा है, तो 140 ऐसे ले लेते हैं किलोजूल पर केजी केल्विन, दिस इज केजी केल्विन। सो इन दिस केस वी कैन राइट डाउन इरिवर्सिबिलिटी एज जनरेशन मिल गया इतना, सो वी हैव T नॉट, दैट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 300 into 0.140, so in this case we are having 14 into 3 is 42 kilojoule per kg is the amount of इरिवर्सिबिलिटी, इतना वेस्ट चला गया, अनअवेलेबल एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम दिस इन द अबव प्रॉब्लम 6.14 दिया हुआ है, तो बुक से लिया हुआ है। सो फाइंड द एक्चुअल वर्क एंड मैक्सिमम वर्क पर केजी, एक्चुअल वर्क एंड मैक्सिमम वर्क,
ये निकालना है आपको, ठीक है। सो मैक्सिमम वर्क कैसे निकालोगे और एक्चुअल वर्क कैसे निकालोगे, है ना। तो एक्चुअल वर्क तो निकल सकता है आपका आराम से, कैसे निकालोगे। सो यू यूज द एस एफ डबल ई, स्टेट 1 H1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्टेड है, लेकिन हीट लॉस कर जा रहा है, हीट लॉस कर जा रहा है कितना, एयर से 10, और यहाँ पे H2 मिल रहा है फाइनल, और हम लोग को वर्क ऑफ एक्सपेंशन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वी कैन राइट डाउन वर्क ऑफ टर्बाइन ऐसे करके आराम से। सो वी कैन हैव, ये तो हम लोग को एक्चुअल मिलेगा, सो वर्क ऑफ टर्बाइन एक्चुअल जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू H1 माइनस H2, ये H2 उधर चला जाएगा, इट विल बिकम H1 माइनस H2 माइनस 10, एंड H1 माइनस H2 आई कैन राइट डाउन Cp T1 माइनस T2 और नॉट। आइडियल बोल दिया ना यहाँ पे, एयर बिहेव्स एज आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए H इज इक्वल टू CpT होता है कि नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, फर्स्ट लॉ, ठीक है। सो वी विल हैव, इन दिस केस वी विल हैव Cp का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 800 माइनस कितना 520, 800 माइनस 520 इज हाउ मच, और 1 का वैल्यू तो किलो जूल में दिया है आपको, सो दिस इज इक्वल टू 280 आई गेस, 280, 800 माइनस 520 वी आर गेटिंग 280, 280 मिल रहा है CpT1 माइनस T2, और उसमें से माइनस 10 करना है ना आपको, माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 270 मिलेगा, दिस इज इक्वल टू वर्क एक्चुअल, मिल रहा है, सॉरी ये मिल रहा है आपको। अब वर्क एक्चुअल इतना मिला, आपको निकालना है वर्क मैक्स, तो इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जो लॉस हो गया उसके वजह से हम लोग को एक्चुअल वर्क मिल रहा है इतना, लेकिन ये इरिवर्सिबिलिटी अगर नहीं होता तो ये तो सीधा इसमें जाके ऐड हो जाता ना, तभी तो जाके वर्क मैक्स मिलता। तो वी हैव गॉट 270 प्लस अनअवेलेबल एनर्जी को भी ऐड कर दो तो हम लोग को बन जाएगा मैक्सिमम वर्क, सो विल गेट 312 किलो जूल पर केजी, दिस इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ आपको, ये न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। सो ये चीज को ध्यान रखना है आपको, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू, एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। सो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर अ रैंकाइन साइकिल विद सुपरहीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कंसिडर अ रैंकाइन साइकिल विद सुपरहीट, superheated दिया हुआ है, if the maximum pressure in the cycle is increased without changing the maximum temperature, if the maximum pressure in the cycle is increased without increasing the maximum temperature, ठीक है, then the without changing the maximum temperature and minimum pressure, यानी कि कंडेंसर प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे और टेम्परेचर को भी चेंज नहीं कर रहे, the dryness fraction of the steam after isentropic expansion will increase, you have to mention as true or false। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, द बेस्ट वे और द बेस्ट अप्रोच, यू ड्रॉ द टीएस डायग्राम, ठीक है। देखो टीएस डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसा कैसा चीज यहाँ पे आएगा और क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सो वी हैव टी है, वी हैव एस है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा सोचना, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देना, वीडियो को पॉज कर लो और अभी थोड़ा सा सोचो, ऑलराइट, और उसका वीडियो प्ले कर लेना, ऑलराइट। सो लेट्स सी यहां से क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, टीएस डायग्राम में ऐसे होगा, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर ये रहा, तो हम लोग एक बार के लिए मानते हैं हम लोग का हायर प्रेशर ये रहा, ठीक है, और लोअर प्रेशर हम लोग का ये रहा, ठीक है। सो दिस इज P2 एंड दिस इज आवर P1, और हम लोग का जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो लिमिट है वो हम लोगों ने मान लिया है ये, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना है और लोअर प्रेशर भी चेंज नहीं करना है, तो हम लोग का टी मैक्स ये रहा। लेकिन हम लोग को क्या बोला गया क्वेश्चन में, यू हैव टू, इफ द मैक्सिमम प्रेशर इन द साइकिल इज इंक्रीज्ड, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, विल ट्राई टू गो इन दिस डायरेक्शन, है ना।
सो मैक्सिमम प्रेशर को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं, सो लेट्स ड्रॉ द मैक्सिमम प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट. तो मैक्सिमम प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन टेम्परेचर फिक्स रखा, क्योंकि हम लोग का टेम्परेचर तो ये भी है, सेम टेम्परेचर ये था, है ना. सो मान लो ये P1 डैश है, ये हम लोग का 1 है और ये हम लोग का 1 डैश. राइट. नाउ लेट्स सी आफ्टर एक्सपेंशन क्या बोल रहा है कि द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम आफ्टर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन विल इंक्रीज आफ्टर द प्रेशर हैज इंक्रीज्ड. लेकिन पहले प्रेशर इंक्रीज करने से पहले जब अगर हम लोग उसको एक्सपेंशन करते हैं, सो द स्टीम वुड हैव कम डाउन टू स्टेट 2 इन दिस केस, यहाँ पे आता. राइट. लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर सेम रखा गया और लोअर प्रेशर भी सेम रखा गया, खाली प्रेशर को इंक्रीज कर दिया गया. तब जाके एक्सपेंशन करते हैं हम लोग, तो 1 डैश टू 2 डैश करते हैं. हाँ देखो तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया ना. The dryness fraction has decreased, not increased. So they are saying the dryness fraction of the steam will after isentropic expansion will increase. It means this is false. होगा ही नहीं, ये ऐसा होगा. So the best approach is to draw. In the such cases, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होने पे ऐसा होगा. Do not have to memorize all the things or all the parameters or all the factors after changing what will happen. No, you do not have to memorize. You just have to grab the concept and use the concept, and that will be fine, and then you will definitely behave like an engineer at that point of time. All right, so let's move on to the next question. Question number 6. I hope this question you can do it. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप यहाँ से क्वेश्चन दोनों का आंसर मुझे निकाल के दिखाना था. ठीक है. In a steam power plant operating on Rankine cycle, steam enters the turbine at 4 megapascal. 4 megapascal, that is 4 into 10 to the power 6 pascal. All right, and 350 degree Celsius. ठीक है. Exits at the pressure of 15 kilopascal. ठीक है. It then enters the condenser and exists as saturated water. Next, a pump feedbacks to the water to the boiler. The adiabatic efficiency of turbine दिया हुआ है, सिर्फ टर्बाइन का efficiency दिया हुआ है. Alright, clear है. The thermodynamic states of water and steam are given in the table. ये आपको दिया हुआ है. H is the specific enthalpy, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे. All these things has been given. What you have to find? You have to find the net work output of the cycle. यहाँ पे सिर्फ adiabatic efficiency of turbine दिया हुआ है. You have to pay attention to this part. पंप के एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि पंप है आइडियल. और यहाँ पे एक और चीज देखना है कि यहाँ पे आपको पंप वर्क को नेग्लेक्ट करने भी नहीं बोला गया है. It is not mentioned. Wherever it will be asked that you have to neglect the pump work, they will clearly mention to you in the question itself. Not a doubt about that. Clear? So यहाँ पे आप लोग पंप वर्क को कंसिडर करना पड़ेगा. Do not neglect the pump work. Alright. So हम लोग के पास इनिशियल प्रेशर, इनिशियल मालूम है. In a steam power plant, the steam enters at 4 megapascal and 350 steam enters the turbine at this. तो आपको steam entering करते समय आपको H का वैल्यू दिया हुआ है, S का वैल्यू दिया हुआ है, this value has been given. ठीक है. और 15 किलो पास्कल पे आपको all different properties दिया हुआ है आपको. क्लियर है. तो you have to find out net work output. So since you have to find out net work output, you have to find out work turbine actual minus work pump. क्लियर. तो वर्क टर्बाइन एक्चुअल निकालना है आपको. H1 दिया हुआ है यहाँ पे, H1 इज गिवन टू यू विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3092.5. ठीक है. एंड S1 एट इनिशियल स्टेट S1 दिया हुआ है आपको 06.5821. तो जब एक्सपेंशन करने के बाद जब आइडियली एक्सपांड होगा 0.2 पे आएगा तो S1 इज इक्वल टू S2. ठीक है. लेकिन S2 पे आप देखो तो S2 इज 8.0 कितना है SG at lower pressure. SG का value is 8.0085. So S2 is less than what? SG. So क्या हो जाएगा? This will lie in wet region or not? जब ये wet region में lie करेगा तो you have to find out the first. You have to find out the dryness fraction. Clear? 2010 में 2 मार्क्स के लिए lengthy question है. You have to be very fast in that. So you have to find out dryness fraction. So S2 is equal to, we can write down SF plus XSFG. Sorry. So in this case, this is S2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6.5821 दिया हुआ है आपको, ये ना S2. तो यहाँ से यूज करके आप X निकाल लो. X निकल जाने के बाद यू कैन, सिंस आपको H1 दिया हुआ है,
you have to find out H2. So H2 निकालने के लिए use this X to find out H2, HF plus X SFG. HFG निकाल लोगे, है ना? So you'll get H2 as well. So in that case work turbine ideal आपको मिल जाएगा, which is equal to H1 minus H2. Now you can find out work turbine actual or not, which is equal to efficiency into work turbine, efficiency of turbine into work turbine ideal. Efficiency is 0.9 into work turbine ideal. तो यहाँ से आपको वर्क एक्चुअल भी निकल जाएगा, यू विल फाइंड इट आउट. तो वर्क टर्बाइन एक्चुअल निकल गया एंड यू कैन फाइंड आउट वर्क पंप. तो आपके पास VF दिया हुआ है, दिस थिंग इज गिवन टू यू, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड आउट द वर्क पंप नाउ. वर्क पंप इज इक्वल टू VF इनटू चेंज इन प्रेशर कितना है, 4 मेगा पास्कल माइनस 15, 4 मेगा पास्कल माइनस, तो 4000 किलो पास्कल माइनस 15 किलो पास्कल. It is in kilo only. So VF का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, you put it, you find out the value of work pump, and in that case you can find out H4 minus H3. work pump यही होता है from the TS diagram. So H4 minus H3 आपको जो वैल्यू मिल गया यहाँ से मिल जाएगा. So you can find out the value of what, H4. So since you can find out the value of H4, so definitely you can find out the value of what, you can find out the value of Q, that is heat supplied. It is H1 minus H4, क्योंकि H1 आपको दिया हुआ है, ठीक है. Now since QS you can determine, then definitely you can find out the value of what, efficiency or work net. efficiency दिया, efficiency निकालना है, नहीं आपको heat supply निकालना है. So you have found out heat supply also, you have found out network output as well. Clear? 2 marks, 4 marks in your hand completely, right? So let's move on to the next question. See here, I guess this is the last question. No, second last. This is the second last question. This question number was 6. Let's move on to the question number 7. In a steam power plant operating on ideal Rankine cycle, superheated steam enters the turbine at 3 megapascal and 350 degrees Celsius. The condenser pressure is 75 kilopascal. The thermal efficiency of the cycle they have asked. So good. Thermal efficiency of the cycle they have asked. All right. So H1 आपको मालूम है, फॉर सैचुरेटेड लिक्विड आपको दिया हुआ है, लिक्विड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे एक और चीज जो मेंशन ये नहीं किया हुआ है, दैट इज यहाँ लिक्विड के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे सुपर हीटेड टेबल मिसिंग है. सो सुपर हीटेड टेबल इज मिसिंग इन दिस केस. ऑलराइट, let's see, let's move on to the next question first and then we'll talk about the superheated that question again. Question number 8. This thing is important, ठीक है. ये क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस ट्रेंड में हैं और ये आते ही हैं जनरली स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन के बारे में. सो मैंने आपको आई हैव लेफ्ट इट आउट फॉर द न्यूमेरिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इन kg per kilowatt hour. Any doubt in this? So see, in the Rankine cycle for a steam power plant, the turbine entry and exit enthalpies, the turbine entry and exit, यानी कि H1 दिया हुआ है, H1 is given to you as 2803 and exit is given as 1800. Alright, so you are getting 1003, I guess. The change in exit enthalpies are given, so you can find out work turbine or not. Okay, fine. The enthalpies of water at pump entry and exit, यानी कि entry पे 3 है तो 121 and H4 is the exit, so you have 124. So you have work turbine and you have work pump. So work turbine is H1 minus H2. In this case 2803 minus 1800 is equal to 1003, and in this case H4 minus H3, so 124 minus 121 is 3. So definitely you will have work net कितना हो जाएगा, 1003 minus 3 is equal to how much, work turbine minus work pump. 1003 minus 3 is 1000 kilojoule per kg, ठीक है. they have asked about the specific steam consumption, यानी कि specific steam consumption SSC. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं बता सकता हूँ आपको, दैट 3600 डिवाइडेड बाय वर्क नेट, ऐसे भी लिखने से होगा, लेकिन ये आता कैसे है ये भी जान लो आप लोग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पर केजी में 1000 केजी मिल रहा है, यानी कि हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं 1000 किलो जूल
is achieved in flow rate of 1 kg per second. होगा ना? Any doubt in this? Clear? So 1 किलोजूल, 1 किलोजूल निकालने के लिए कितना होगा? 1/1000 होगा. केजी पर सेकेंड है, केजी है, पर सेकेंड है, और ये हो जाएगा किलोजूल. ठीक है, किलोजूल सेकेंड. तो इसको अगर हम लोग सेकंड को अगर हम लोग आवर में बदल दें तो इट विल बिकम 1000 सेकंड. तो डिनोमिनेटर में, सो इफ यू कन्वर्ट दैट इनटू आवर, बिकॉज दे हैव आस्क्ड इन किलोजूल पर केजी पर किलोवाट आवर. सो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? देखो तो 3600 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया कि नहीं? एंड दैट दिस 1000 इज व्हाट? वर्क नेट. दिस पार्ट आई एम गेटिंग 3.6 एज द आंसर. स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का मतलब होता है कि इन 1 आवर व्हाट इट बी द स्टीम रिक्वायर्ड. ठीक है, व्हाट वुड बी द स्टीम रिक्वायर्ड. देखो केजी, तो स्टीम रिक्वायर्ड इज 3.6 केजी. ऐसे अगर लिख रहे हैं 3.6 केजी पर किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 3.6 केजी ऑफ स्टीम का जरूरत है. दिस इज नोन एज स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन. ऑलराइट, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो. और ये फॉर्मूला कैसे है मैंने आपको बता दिया. ये यूनिटरी मेथड से, क्योंकि 1 के बारे में निकालना है, पर किलोजूल के बारे में निकालना है. दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस. ऑलराइट, so this thing is important to understand. Alright, so now from this part is superheated table. Just wait a minute, I'll try to जिस सुपरहीटेड टेबल का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें, मैं आपको यहाँ पे एंटर करके दे दूंगा. लाइक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली लाइक हाउ दिस इज हैपनिंग. ऑलराइट, so in this case we had, there are many questions which generally we will be talking about from gas turbines also, from steam turbines also. ठीक है, लेकिन हम लोग को वहां पे पहले ये जानना जरूरी है. लाइक first we have done this, then we'll talk about regeneration, we'll talk about reheat. See, these are the questions which are from reheat. ठीक है, so these questions reheat, regeneration आपको जानना होगा. Alright, so there are few more questions that is I'll discuss in the next set of lectures, that is numerical lectures. Now we have this value as, sorry, where is it? So this is the another part. Alright, so this part is, this is the part that appeared in 2016. Alright, 2 marks. This is a superheated steam. So sorry for this part actually. So superheated table is given to you. Alright, superheated table के बारे में भी आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है. And this superheated table you can utilize it now completely. ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो ये चीज के बारे में आपको दिया हुआ है 3 मेगा पास्कल. तो 3 मेगा पास्कल को आप क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट डाउन 3000 किलो पास्कल, है ना. एंड द लोअर प्रेशर इज, दिस इज P1 and this is P2. P2 is nothing but 75 kilo Pascal. Clear? The thermal efficiency of the cycle is, you have been asked thermal efficiency of the cycle. तो थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको QS जरूरत है और वर्क नेट की जरूरत है. सो यू नीड दिस बोथ. ऑलराइट, तो दे हैव बीन गिवन सैचुरेटेड लिक्विड के बारे में दिया हुआ है. आफ्टर कंडेंसेशन दे हैव गिवन यू द वैल्यूज, एंड 75 किलो पास्कल में आपको स्टीम के सारे वैल्यूज दिए हुए हैं. ऑलराइट, नाउ एट 3 मेगा पास्कल एंड 350 डिग्री सुपरहीटेड स्टीम आपको बता दिया क्वेश्चन में आसानी से. सो यू हैव H1,
ये दो क्वेश्चन आप मुझे करके देना। तो H1 is given to you 3115.3 and S1 is given to you as 6.74 twice 28 kilojoule per kg Kelvin. Now since in this case there is nothing mentioned about the turbine efficiency or pump efficiency, all the processes are idle. In this case you will find out S1 is equal to S2 directly and इसका वैल्यू 6.7428। देखो यहाँ पे उन्होंने ना लाइक आपके साथ थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ SFG का मेंशन किया है। they have only mentioned about the SFG part, they have not given to you SG। दिया है क्या? नहीं दिया ना, ठीक है। SFG दिया हुआ है और SF दिया हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स कोई भी ये में आपको SG माइनस SF, आपको SG निकालना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू कंपेयर दिस विथ SG और नॉट, आपको SG के साथ कंपेयर करना है। तो SG निकालने के लिए SG माइनस SF इज इक्वल टू व्हाट, SFG होता है। तो SG क्या हो जाएगा, SF प्लस SFG। SF का वैल्यू आपको दिया हुआ देखो 1.213 एंड SFG का वैल्यू दिया हुआ 6.2434। 6.2434। So in this case 6.2434 plus 1.213 है ना, 1.213। In this case you are having 7.456, 7.4564 SG का वैल्यू। अब देखो तो SG का वैल्यू से ये क्या है, कम है ना, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो यहाँ पे रॉन्ग कर बैठोगे, देन यू विल से दैट S2 इज ग्रेटर देन SG गलती से, लेकिन यहाँ ये है। सो दिस इज इन वेट रीजन, है ना, वेट रीजन में है। तो S2 इज इक्वल टू वी कैन राइट डाउन SF प्लस XSFG। कौन सा प्रेशर के लिए हो रहा है, दिस इज फॉर 75 किलो पास्कल और नॉट, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 6.7428। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लो। एक बार x का वैल्यू आपने निकाल दिया, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क टर्बाइन H1 माइनस H2। H1 दिया हुआ आपको, and then H2 निकालना है, then H2 you apply again HF plus XSFG। यहाँ से आप H2 निकाल लोगे, so you'll get work turbine। Now you have to find out work pump। तो work pump is VF into DP, change in pressure यानी कि 3000 minus 75 किलो पास्कल, किलो में दिया हुआ है। Now you do not have to convert into anything। So VF का वैल्यू आपको देखो तो क्या दिया हुआ है, 0.001037। तो यहाँ से वर्क पंप भी निकाल लिया, इजी। वर्क पंप होता है H4 माइनस H3 एंड H3 इज नथिंग बट H3 इज इक्वल टू HF एट 75 किलो पास्कल, है ना, क्योंकि H3 कंडेंसेट सैचुरेटेड लिक्विड है। तो सैचुरेटेड लिक्विड एट 75 किलो पास्कल, HF का वैल्यू दिया हुआ देखो तो ये रहा 384.39। तो HF का वैल्यू आपको मालूम है, H3 का वैल्यू मालूम है, वर्क पंप आपको मिली गई, यू कैन फाइंड आउट H4 और नॉट। सो वंस यू हैव फाउंड आउट H4, you have H1, then you can find out QS which is equal to H1 minus H4। Simple एकदम, it is going like a machine, it is just like working like a mechanism, एक के बाद एक के बाद एक कैसे यूज करना है आपको, ठीक है, quite simple। So you solve this questions, these two questions 6 and 7 as your homework। alright, it's an assignment for you guys। आप सॉल्व करके मुझे बताना आंसर कितना है, और you can check also in your previous years, ठीक है, आप ये करके मुझे बताओ। And I'll see you in the next lecture। We will be talking about regeneration and reheating, which is also very important। In the next lecture, we will be talking about few more things, that is ways to improve the Rankine efficiency। All right, we'll be talking about methods to improve Rankine efficiency, improve efficiency of Rankine cycle। Is there any doubt in this? Clear hai? So let's see, we'll see you in the next class। Until then, just solve all the questions, try to attempt the questions from all different sources। I'll give you some questions in the I'll give you the assignment after we have done this part, methods to improve Rankine efficiency। all right, so see you in the next class, see you in the next class with this part, and then till then you take care and study well, and